بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو 11ویں میں ہم اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ ہے اور پاکستان بن گیا۔ اگر ہم درسی کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 7واں سبق ہے، اور اگر ہم صنف ادب کے حوالے سے بات کریں تو یہ ناول ہے، اور اس ناول کا نام ہے آنگن۔ خدیجہ مستور اس کی مصنفہ ہیں۔ اس میں سے ہم نے اس کا جو ایک قسط ہے یا ایک اتنا حصہ لیا ہے جس میں پاکستان بننے کا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چونکہ یہ ناول جو ہے یہ تحریک پاکستان کے وقت لکھا گیا، اور جو تحریک آزادی اس پر ہم نے جس صلاحیت پہ آج کام کرنا ہے وہ ہے جی زبان شناسی کی۔ آپ جانتے ہیں ہم نے ہمارا جو سب سے پہلا حاصل تعلم تھا حروف ہجائیہ سے متعلق، اس کو تفصیل سے 2 دن لگا کے 2 کلاسز میں اس کو مکمل کر لیا، اور اس کی مشق بھی کر لی، اس کا اطلاق سبق بھی کیا، اور روزمرہ زندگی پر بھی۔ زبان شناسی ہی کی ذیل میں جو ہمارے باقی حاصلات تعلم ہیں ان پہ کام کریں گے سبق نمبر 7.3 یعنی تیسرے لیکچر میں۔ اور آج ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہمارے حاصلات تعلم کیا ہوں گے، ان کو جاننے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ کچھ الفاظ ہیں آپ کے لیے، آپ نے جلدی سے آن لائن لغت کا استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے اسباق میں آن لائن لغت اور اردو تھیسورس کا استعمال سکھا چکی ہوں، تو ان کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن لغت کے استعمال کی سے آپ نے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے، اور ہر لفظ جو آپ کو دیا گیا اس کے کم از کم 2 مترادف الفاظ بھی جو تھیسورس ہے اس سے تلاش کرنا ہے۔ تو الفاظ ہیں جی ہمارے پاس، یہ سب سے پہلے لفظ ہے نعرہ مستانہ، چمنستان، طاغوت، پڑمائی اور پناہ گزین۔ 5 منٹ کا وقت لیجئے اور جلدی سے ان کے معنی اور 2 مترادف الفاظ تھیسورس کی مدد سے تلاش کر کے بتائیے۔ تو آپ لوگوں نے ان الفاظ کے معنی تلاش کر لیے، شاباش۔ اور کیا آپ کو ان آئمہ جی آئمہ، آپ نے ان الفاظ کے معنی تلاش کر لیے؟ اچھا جی، آپ کو ان الفاظ میں سے کیا تمام الفاظ کے 2 مترادف الفاظ ملے، یا کچھ ایسے الفاظ بھی تھے کہ جن کے مترادف الفاظ نہیں تھے؟ ٹھیک ہو گیا جی، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ ہمارا آج کا جو کام ہے، جو آج کے حاصلات تعلم ہے، وہ ہے الفاظ و معنی سے واقفیت اور ان کے انتخاب میں لغت اور تھیسورس کا استعمال کر سکیں۔ ایک حاصل تعلم یہ ہے جس کو ہم نے پہلے پڑھا، اور دوسرا ہے محاورات اور ضرب الامثال کے استعمال سے تخلیقی تحریر، یعنی ایسی تمام تحریر، وہ مضمون ہے، کوئی کالم ہے، کوئی افسانہ ہے، کوئی داستان ہے، کہانی ہے، جو آپ خود سے تحریر کریں، تخلیقی تحریر، اس میں معنویت اور معیار کو بڑھا سکیں۔ تو یہ دونوں حاصلات تعلم اس سے قبل ہم کر چکے ہیں۔ ہم اب یہ کریں گے کہ آج چونکہ ہم نے ان کی مشق کرنی ہے، ان کی دہرائی کی ذیل میں، تو میں نے آپ کے سبق میں سے ایک اقتباس نکالا ہے۔ آپ نے اس اقتباس کو جلدی سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے کم از کم 8 ایسے الفاظ منتخب کیجئے جو آپ کو نئے لگ رہے ہوں، یا آپ جن کے معنی سے ناواقف ہوں۔ ان الفاظ کو جلدی سے، ان 8 الفاظ جن کو خط کشید کریں گے، ان کے معنی تلاش کر کے مجھے بتائیے۔ تو جلدی سے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایک حاصل تعلم جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ آپ تو یہ بات جاری رکھتے جب رکھتے ہیں، مکمل نہیں ہوتی تو اس وقت یہ علامت لگائی جائے۔ اچھا، اس میں جیسے سب سے پہلا لفظ ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ تڑپوں گی، تڑپنا کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہونا، کسی تکلیف سے بے چین ہونا۔ ٹھیک ہے، ہاتھ منہ میں چھپا کے سسکنا، ہاں
हाँ, हिचकियाँ लेकर रोना। सिसकने का मतलब होता है घुट घुट कर या हिचकियाँ लेकर रोना। अच्छा, उसके बाद में अगर वक्त आया था, शादमानी, खुशी, सुकून। हाँ जी, मुझे बड़ी अच्छी मुलाजमत दी जा रही है, फिर दुकानों को चलाने। इमदाद, मदद, मदद होगी। शिकायतें, गिले, शिकवे। रफ़ा कर दूंगा, दूर कर दूंगा। रफ़ा कर देना, दूर कर देना। टपकना, प्यार से सहलाना। सबका प्यार किया या प्यार से सहलाया जी। मध्यम, कम, हल्की। ठीक है। और कलेजा कट रहा था, कलेजा कटना, कलेजा कट, कनेक्शन। हाँ, ये तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है ना आपका जो बहाल हो। अच्छा जी, कलेजा कटना या कलेजा कट रहा था। हाँ, दिल जो है वो डूब रहा था या दिल खून के आंसू रो रहा था, ये बहुत तकलीफ हो रही थी। ठीक है जी। और घुट घुट रही थी यानी अंदर ही अंदर अपने गम का इजहार नहीं कर पा रही थी, बल्कि उस गम को अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। तो इस तरह हम अगर देखें तो हमें बहुत से ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिनके मानी से हम नावाकिफ़ होते हैं। तो आपने अभी चूँकि आज वक्त मुख्तसर है, तो मैंने आप लोग बेशक इन्हीं अल्फाज के मानी दोबारा से या एक और इक़्तिबास लेके उसके मानी अपने आपने ऑनलाइन लुग़त से तलाश करने। ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक हासिल ताल्लुम है कि उर्दू तहरीर में हम मुहावरात और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम उर्दू तहरीर में मुहावरात और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू की तासीर में इजाफ़ा करने के लिए करते हैं। जब हमें लंबे चौड़े जुमले बोलने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बात में जब उसको पुरअसर बनाना होता है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ऐसा जुमला, ऐसा मुहावरा या ज़रबुल मिसल इस्तेमाल कर लें जो वहाँ पे उस मौके की मुनासबत से अच्छी हो। उसके बाद एक फ़ायदा ये होता है या एक इस्तेमाल की एक वजह ये होती है कि उससे हमारी तहरीर जामे हो जाती है और मुख्तसर हो जाती है। मुख्तसर होती है और इजहार जामे हो जाता है। जैसे आपने कहीं पे अगर ये कहना हो कि ना किसी किसी शख्स की वजह से जब मुश्किल हो रही होती है या वो अपनी परेशानियों को या चीज़ों को फैलाए चले जा रहा होता है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि मुख्तसर बात होती है लेकिन अपना मानी और मफहूम जो है वो वाज़े कर देती है। फिर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत इस वक्त महसूस की जाती है जैसे तशबीहात हैं, इस्तारात हैं। ये क्या है? मुहावरात हैं, ज़रबुल अमसाल हैं। ये हमारी ज़बान की खूबसूरती है। तो अपनी गुफ्तगू में खूबसूरती के इजहार के लिए भी हम तहरीर में मुहावरात और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा किसी भी जैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे आपके ईडियम्स होते हैं, तो ये क्या है, ये उनके लिटरेचर को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से हमारी सकाफ़त और हमारी रिवायात की अक्कासी करने के लिए भी जो ज़रबुल अमसाल होती हैं और जो मुहावरात होते हैं, वो चूँकि अहले ज़ुबान ने अपनी ज़िंदगियों से, अपने तजुर्बात से अख़ज़ कर रखे हैं, तो हम इसलिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारी रिवायात की अक्कासी होती है। उसके बाद हम इसलिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी गुफ्तगू को, हमारी तहरीर को, हमारी तख्लीकी जो सोच होती है जिसको हम तहरीर की शक्ल देते हैं, उसको आसान और आम फहम बना देती है। और उसके बाद हमारे जो पोशीदा पैगामात होते हैं जिनको हम वाज़े और सादा जुमलों में नहीं बयान करना चाह रहे होते, वो मुहावरात और ज़रबुल इम्साल की मदद से उनकी वजाहत हो जाती है। और इसका एक और जो पहलू होता है वो ये होता है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी का, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अक्स इसमें दिखाई देता है। ठीक है जी। तो इन तमाम वजूहात या इन तमाम चीज़ों की वजह से हम उर्दू तहरीर में मुहावरात और रोज़मर्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये हमारा एक और हासिल ताल्लुम था। अब करने का काम यह है कि आप लोगों ने सबक और पाकिस्तान बन गया, इसमें बहुत से मुहावरात और ज़रबुल इम्साल इस्तेमाल किए गए। आपने गौर से पढ़ना है और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मैंने बीच में से इनका इंतखाब किया है। आपने इनको इस्तेमाल करते हुए एक इक़्तिबास तहरीर करना है। अब यहाँ पे कुछ मुहावरात और ज़रबुल इम्साल ऐसे हैं जो सबक से लिए गए, जैसे निचला ना बैठना, सर सहलाना, सर धड़ की बाजी लगाना, ठंडी आहें भरना और जान पर बनना। इन तमाम को इस्तेमाल करते हुए आप एक मुख्तसर इक़्तिबास तहरीर करेंगे और जो मरबूत हो, जिसका आपस में ताल्लुक़ भी कायम हो, और फिर उसको आपने एक नाम देना है। एक ये काम आप करेंगे। मश्क में हमने इसको किस तरह से शामिल किया है, अगर आप देखें किताब का सवाल नंबर 6 है जी, ज़ैल में दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें।
आँच ना आना, जान निछावर करना, ठंडी आहें भरना, खून की होली खेलना और सर धड़ की बाजी लगाना। यहाँ पर सिर्फ मुहावरात हैं। आप लोगों के लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें कुछ ज़रबुल अमसाल को भी शामिल किया गया। अगर हम दरसी किताब के 7वें सवाल को देखें तो कुछ अल्फाज हैं, उनके आपने मानी लुगत से तलाश करें या थिसॉरस का इस्तेमाल करते हुए मुतरादिफ तलाश करेंगे और वो आप लिख कर लाएंगे, जैसे आंगन, नीम दीवानगी, थालिया, बैठक, रुखाई, डुबडुबाई, चमन, ग्रामोफोन और अजियतनाक। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद मश्क के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मुहावरात और ज़रबुल अमसाल आप लोगों के लिए दिए गए हैं, उनकी मदद से आपने एक तख्लीकी तहरीर को इसमें इस्तेमाल करना है, उन मुहावरात और ज़रबुल अमसाल को, और फिर वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि उसको देख लिया जाए। तो इस तरह आपके ये दोनों हासिलात ताल्लुम मुकम्मल हो गए। कल इंशाल्लाह हम अपने पढ़ने के हासिलात पे काम करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले आप उसको देख के आइएगा, सीख के आइएगा ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।